Namaste friends, let us discuss the chapter Mathematical Methods from 11th Standard Physics according to Maharashtra Board syllabus. Most of the chapter is related to scalars and vectors. In 9th standard you studied about scalars and vector as an introduction. So what are the scalars? Consider example of length of this chalk. In order to measure length of the chalk, we directly use the scale. By using scale, if we measure the length of the chalk 5 centimeter, so this number 5 and unit size centimeter, that means this is 5 into 1 centimeter. This is number, this is the size of unit. Okay, we studied this in the chapter measurement. So 5 centimeter means 5 times 1 centimeter. So this is the magnitude. So by having magnitude of this length, we completely describe the length of this chalk. We don't have to consider direction. Again, to measure the mass of this, we don't have to consider direction. Directly we measure the mass by using balance. Again, to measure temperature of our body, we don't have to consider direction. Okay? We measure the time, but we don't have to consider direction while measuring the time by the clock or watch. So that means some physical quantities can be explained, can be described by their magnitudes alone. Such quantities are called scalar quantities. So what is the definition? The physical quantities which can be completely described बोले या फिर explain बोले, completely described by their magnitudes alone. By their magnitude alone. Are called as scalar quantities, or in short we say scalars. For example, length, mass, time, temperature, electric current, etc. Electric current, even if it is having direction, but till suppose this is the conductor having current I equal to 1 ampere, direction change, same conductor is bent, again it remains 1 ampere, again direction change, it remains 1 ampere. Okay, again direction change, it remains 1 ampere. So no effect due to change in direction, therefore independent of direction, hence it is scalar. Now let us consider vector quantities. Take the example of displacement. Now let us study vectors. Consider example of displacement. You know the definition of displacement you studied in 9th standard.
the shortest distance between initial and final position is called displacement. Is called as displacement. Now suppose this chalk is given displacement of 5 किलोमीटर. इस चौक को हमने डिस्प्लेस कर दिया 5 किलोमीटर से. अब आपको पता है माई लोकेशन इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द चौक. इट इज गिवन 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, बट आई एम नॉट मेंशनिंग, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्शन in which direction it is displaced. This is not mentioned. So it is quite difficult to locate the final position. In order to locate final position, what can we do? We draw a circle of radius 5 किलोमीटर. तो आप क्या कर सकते हैं, 5 किलोमीटर की रेडियस और उसका ऐसा एक सर्कल बना सकते हैं. Then we can locate, we can find out that final position, but it is difficult. If we mention direction, if I mention direction, it is displaced 5 kilometer towards my right, then final position is at 5 kilometer towards my right. It is quite easy to locate final position, to determine final position if we say direction. The displacement need direction also. Just by saying value, that means magnitude 5 kilometer, it is not completely described. सिर्फ 5 किलोमीटर से डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं हो रहा है. तो वी नीड डायरेक्शन ऑल्सो, बिकॉज इन द डिस्प्लेसमेंट देयर एग्जिस्ट टू पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. द chalk is now displaced from this my location, so my location is the initial position. But if I don't say in which direction it is displaced, it is quite difficult to locate final position. Okay? So if I say it is displaced towards my left, then it is easy. Just say it is displaced towards my left or right, but I am not going to say magnitude. Then again difficult. If we say just magnitude, not direction, difficult to locate final position. But if you say direction but not final position, again difficult to locate the final position. So this indicates that we need magnitude as well as direction to explain the displacement completely. Otherwise not. The magnitude required, direction required, such quantities are called as vector quantities or vectors. So what is the definition? The physical quantities which need magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction for their complete description. Complete explanation बोला है, description बोला. For their complete description are called as vector quantities or vectors. Vector quantities बोलो या फिर vectors. For example, अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी. वेलोसिटी आल्सो वेक्टर. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी होता है वेक्टर, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर.
एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, etc. These are the vector quantities. अब वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, ऑल्सो बाय सिम्बॉल्स, मतलब नोटेशंस. तो नोटेशंस जैसे फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स के लिए सिंबल यूज कर सकते हैं हम F, लेकिन वेक्टर है उसके ऊपर एरो दे, तो सिंबल के ऊपर एरो. एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, उसके लिए सिंबल ए यूज कर सकते हैं, लेटर ए, उसके ऊपर आप एरो दे सकते हैं. ओके, तो सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर ओवर विच एरो इज ड्रॉन. उसके ऊपर एक छोटा एरो ड्रॉ करना. वैसे वेलोसिटी का वेक्टर, वेलोसिटी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वेक्टर भी. डिस्प्लेसमेंट के लिए इसे कैसे पढ़ना है, वेक्टर यस, या फिर वेक्टर यस एक्स. तो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग द सिंबल देयर फर्स्ट लेटर. फोर्स का पहला लेटर एफ है, तो फोर्स के लिए एफ कैपिटल एफ स्मॉल है, दोनों एप्लीकेबल है. यू कैन राइट स्मॉल एफ ऑल्सो. ठीक है, वैसे एक्सीलरेशन के लिए ए कैपिटल ए स्मॉल है कोई भी यूज कर सकते हैं. तो उसका पहला लेटर जरूरी नहीं कि हमेशा पहला लेटर यूज कर. जैसे इधर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी नहीं यूज कर रहे, एस यूज कर रहे, या फिर एक्स. रेयरली आप डी भी यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं. जो मेंशन, जो यूज कर रहे हैं उसको मेंशन करना जरूरी है. यदि किसी ने डिस्प्लेसमेंट के लिए डी यूज कर दिया तो चल सकता है, लेकिन उसको मेंशन करना जरूरी है. लेट डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी. तो in order to represent vector quantity, or we can say vectors, by symbol, by notation, we use a single letter. Okay, एक single letter use कर सकते हैं. A single letter generally the initial letter, और it may be different, अलग भी हो सकता है. कुछ conventional symbol होते हैं वो use करते हैं. जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका सिंगल लेटर तो डी, सॉरी इनिशियल लेटर डी, लेकिन तो भी हम डी के बजाय यस और एक्स यूज कर सकते हैं. डी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि डी यूज करना ही नहीं, लेकिन जो भी यूज करना है उसको मेंशन करना होता है कि लेट एफ इक्वल टू फोर्स, लेट ए इक्वल टू एक्सीलरेशन, लेट वी इक्वल टू वेलोसिटी. ऐसा पहले अज्यूम करना होता है, बाद में फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करता है वो इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल मेथड. फॉर एग्जांपल if an object is given displacement of 5 kilometer due north east, how can we represent now? Suppose this is x axis, this is y axis. Now this is considered as east. This is north along y axis. Again along negative y axis we use south. Along negative x axis we can use west direction. ये नॉर्थ ऊपर नहीं है, यहाँ पे इमेजिन करना है आपको. ये ईस्ट वेस्ट या ऐसा हॉरिजॉन्टल नॉर्थ साउथ, दोनों भी हॉरिजॉन्टल, ईस्ट वेस्ट भी हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ साउथ भी हॉरिजॉन्टल. ठीक है, लेकिन ग्राफ की बात करते ये ओरिजिन आएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो अब बोला 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट. सिंबॉलिकली पहले लिख लेते. सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि आप यस लेटर यूज करते हैं उसके ऊपर एरो दे दो.
5 किलोमीटर, ऐसा मैंने लिख दिया. दिस इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज वी जस्ट राइट हियर magnitude. I have written magnitude only. Also write now direction. Due तो शॉर्ट में लिखता नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है ईस्ट है. अब ये कंप्लीट इस तरह से लिखते हैं तो करेक्ट है बिकॉज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिटन हियर फॉर वेक्टर एस. तो वेक्टर एस मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट. अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना? ग्राफ के ऊपर 5 किलोमीटर का आप एरो नहीं बना सकते. ग्राफिकली वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ड्राइंग एरो, एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एरो हेड. ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है? ओरिजिन से. कितने डिस्टेंस की? 5 किलोमीटर. लेकिन 5 किलोमीटर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल. तो स्केल सिलेक्ट करना. तो स्केल क्या सिलेक्ट करना है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मानना. तो मतलब 5 किलोमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर का आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी. तो लेट अस ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर बट इन द डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट. मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट के बराबर मिडल से. ठीक है, अब डायरेक्शन किसके ओर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर. तो जिधर डायरेक्शन है उधर ऐसा एरो हेड दे दो. तो ये आएगा फिर 5 किलोमीटर. ओके, एक्चुअली इट इज 5 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू क्या मान लिया? स्केल इज सिलेक्टेड एज 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर. तो 5 किलोमीटर के लिए क्या? 5 सेंटीमीटर. तो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. ओके, but arrowhead direction of this arrow is the direction of this vector quantity displacement. डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट. तो फिर इस एरो की डायरेक्शन किधर होने चाहिए? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच. यदि हम बोलते डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो इस डायरेक्शन के अलांग फिर एरो आता है 5 किलोमीटर का. यदि हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट के बराबर ऐसा मिडल में इधर एरो आता 5 किलोमीटर. तो यहाँ से समझ रहे फिर ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और वी कैन से बाय अ स्ट्रेट लाइन ओवर विच एन एरो हेड इज ड्रॉन. उसके ऊपर ऐसा एरो का हेड है. या डायरेक्टली ऐसा बोल दो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स इट्स मैग्नीट्यूड. ये उसका मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल हियर इज द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब इधर 5 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड है. इसको सिंबल में लिखना है मैग्नीट्यूड, तो ऐसा लिखते हैं. ये डायरेक्शन में, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, बट इफ वी जस्ट राइट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर बाय सिंबल, तो ऐसे मॉड में लिखना होता है. 2 लाइन के बीच मतलब मॉड, मॉडुलस ऑफ यस वेक्टर. इन शॉर्ट मॉड. 2 लाइन के बीच में लिखना मतलब मॉड. एक्चुअली वो शॉर्ट फॉर्म है, ये मॉडुलस होता है. मॉडुलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब उसका क्या है? मैग्नीट्यूड. ये हम लिख सकते हैं 5 किलोमीटर. अब डायरेक्शन लिखी नहीं क्योंकि जस्ट मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड. इसे ऐसा भी लिख सकते हैं. आपको एरो नहीं देना है, एरो निकाल सकते हैं, मॉड भी निकाल लो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो व्हाइल राइटिंग मैग्नीट्यूड, दैट वेक्टर सिंबल इज रिटन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स. तो ऐसे पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जिसे बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर. यस, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब उसकी मैग्नीट्यूड. वी कैन राइट इन दिस वे. जस्ट लेटर डोंट गिव एरो, डोंट राइट दैट मॉड. ये भी सही है, ये भी सही है. इधर वेक्टर यस, इसका मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर. लेकिन मैं इस मैग्नीट्यूड को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ. तो ये क्या लिखना पड़ेगा फिर? 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट.
अब ये सही है. So this displacement 5 kilometer due north. Now this starting point of vector is called as tail. It is represented by symbol O. O for origin. एंड पॉइंट को भी आप कुछ नाम दे सकते हैं. मान लो इसको ले दे दिया P, तो हम लिख सकते हैं फिर अभी OP वेक्टर. ऐसे दो लेटर यूज करते हैं वेक्टर के लिए. तो फर्स्ट लेटर उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेकंड लेटर उसका एंड पॉइंट होता है. तो OP वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो व्हेन सिंगल लेटर इज यूज, इट इज एक्चुअली सिंबल ऑफ दैट क्वांटिटी. बट व्हेन वी यूज टू लेटर्स, वी आर हैविंग डिफरेंट चॉइस. कुछ भी लिख सकते हैं दो लेटर. यहाँ पे O स्टार्टिंग लेटर एज अ ओरिजिन के लिए O लिखा है, एंड पॉइंट के लिए मैंने P अज्यूम कर लिया. अब Q अज्यूम कर सकते हैं, R अज्यूम कर सकते हैं, वट एवर. बट व्हेन टू लेटर्स आर यूज, देन फर्स्ट लेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द सेकंड लेटर मतलब लास्ट लेटर इज द एंड पॉइंट. तो एरो वाला जो पार्ट होता है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं, और जो ओरिजिन वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का उसे इसे टेल बोलते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट. ठीक है. तो ये समझ गए थे. ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. ठीक है. अब मैंने यदि इस तरह का वेक्टर बना लिया और ये और एक बड़ा वेक्टर बना लिया, मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं कर रहा लेकिन इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दिया S1 S2. भले मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं कर रही, मैग्नीट्यूड इज नॉट मेंशन, बट टिल it is clear that this one having larger magnitude than this S1. S2 का magnitude S1 से बड़ा है, because length of that arrow indicate magnitude. Length of the arrow indicates magnitude. Direction indicate direction of that vector quantity. अब दोनों डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम दिख रही है, लेकिन फिर मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं. वो एक ही प्लेन में है क्या? है. वो एक ही प्लेन में. तो को प्लेनर तो बन गए. सेम डायरेक्शन है, कोलिनियर भी हो गए. एक ही डायरेक्शन है तो कोलिनियर बोल सकते हैं. तो कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि उनको लगता है यही कोलिनियर है, एक के बाद एक है तो कोलिनियर. तो ये S1 ये S2 बराबर है, ये कोलिनियर है लेकिन ये भी कोलिनियर. टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द पैरेलल लाइंस और acting along the same lines till they are collinear, or we can say parallel. ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दोनों कोलिनियर है. ठीक है. इस तरह से तो ये भी कोलिनियर है लेकिन अपोजिट है, इसलिए एंटी पैरेलल बोल सकते हैं. ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले ये बात समझ लो. When vector is represented by graphical method, then it is represented by an arrow. Length of the arrow indicates its magnitude. उसकी value, magnitude मतलब value. And arrowhead indicate direction of that vector quantity. ठीक है. अब यदि मैं इस तरह से ऐसा ड्रा करता हूँ, ये वेलोसिटी वेक्टर मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन और एक दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये V1 ये V2. तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन ये लार्जर मैग्नीट्यूड वाला, ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला. तो एक बात समझ गए. फिर ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और वी कैन से बाय अ स्ट्रेट लाइन ओवर विच एन arrowhead is drawn in the direction of that vector quantity. जिधर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है उस साइड में एरो ड्रॉ करो, उस डायरेक्शन में. ठीक है. द लेंथ इंडिकेट मैग्नीट्यूड, एरोहेड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी. तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. उसको लिख लेते हैं. जैसा अभी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग तो लिखा ही है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. Symbolically, a vector is represented by a letter over which an arrow is drawn.
For example, displacement can be represented as vector S. लेटर उसके ऊपर एरो, फोर्स एज वेक्टर एफ. तो स्मॉल एफ भी आप यूज कर सकते हैं. एक्सीलरेशन एज वेक्टर ए, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं. वेलोसिटी एज वेक्टर वी. इस तरह से आप वेक्टर क्वांटिटी सिंबल उसके ऊपर एरो दे के ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली. अब ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, डबल हो गया, इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. Graphically, vector is represented by an arrow. फिर से लिखते हैं इसे. Vector is represented by an arrow. The length of arrow indicates magnitude of that quantity, magnitude of that vector, and direction of arrow head. सिर्फ एरो बोलो या एरो हेड बोलो, क्योंकि जो लास्ट एरो का जो पॉइंट दिखता है उसका एरो हेड बोल सकते हैं, इसलिए एरो हेड लिखा. इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी. अब वेलोसिटी है तो एरो की डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन. एक्सीलरेशन है तो एरो की जो हेड की डायरेक्शन है वो क्या है? उस एक्सीलरेशन के लिए. इसलिए उसकी जो लेंथ की वैल्यू है, मतलब वो मैग्नीट्यूड है, और एरो की डायरेक्शन क्या है? उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है. यही लिखा है. अब एक रिप्रेजेंटेशन करना है. फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट. इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल सिलेक्ट करना जरूरी. तो सिलेक्ट स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर. बस एक बार स्केल सिलेक्ट कर लिया आपने, तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. यहाँ पे ग्राफ पेपर वगैरह ऐसे कुछ जरूरत नहीं. यदि आपको एग्जाम में आ गया हाउ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, तो नो नीड टू यूज ग्राफ पेपर. डायरेक्टली ऑन द पेपर ड्रॉ द 2 एक्सेस. तो एक्स एक्सिस के लिए इधर ईस्ट है, वाई एक्सिस के लिए इधर नॉर्थ है, फिर से निगेटिव वाई के लिए साउथ है, निगेटिव एक्स के लिए हम यूज करते हैं वेस्ट. ये ओरिजिन. यहाँ पे लिख देते स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5. ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सफिशिएंट. तो ड्रॉ एन एरो ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट. स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट. ओके. ये बन गया इसका रिप्रेजेंटेशन. इस तरह से एन ऑब्जेक्ट गिवन डिस्प्लेसमेंट ये है 5 किलोमीटर. ठीक है. तो स्केल सिलेक्ट कर ले, उसके बाद ड्रॉ एन एरो ऑफ 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट. सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ड्रॉ एन एरो of length 5 centimeter to represent 5 kilometer along northeast. Okay, so this is the graphical representation of vector, that is displacement here. और 2 लेटर यदि यूज करने सिंबल के लिए, तो पहला लेटर स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा लेटर एंड पॉइंट. ठीक है. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी बाय ग्राफिकल मेथड. नाउ लेट अस डिस्कस पोजीशन वेक्टर.
ये इम्पॉर्टेंट है, आगे डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करने वाले हम। तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर? सपोज ये सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, उसका है ओरिजिन, ठीक है, ये निगेटिव एक्स, ये निगेटिव वाई, तो ओरिजिन। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ अ वेक्टर, दैट मीन्स ड्रॉ एन एरो। तो पोजीशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एट द पॉइंट पी, so this OP vector is called position vector. तो definition कैसे? How can we define? ये exact origin पे ड्रॉ किया इसे, ठीक है, x axis. A vector which represents position of an object with respect to the origin of selected coordinate system. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने रेफरेंस के लिए यूज़ कर लिए, सिलेक्ट कर दिया, इसे सिलेक्ट किया, उसके ओरिजिन से जहाँ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है उसके लोकेशन तक, उसके पोजीशन तक जो एरो ड्रॉ कर रहे हैं, उस एरो को हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर, क्योंकि एरो मतलब वेक्टर है, वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली। अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स, क्या कर रहा है वो? रिप्रेजेंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब और दूसरे तरीके से समझाता, ये चौक है, इस रूम के अंदर चौक की पोजीशन हमें फिक्स करना है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट दिस कॉर्नर। इस रूम में बॉटम में 4 कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर को मैंने ओरिजिन मान लिया, इधर इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लिया, तो उस ओरिजिन से इस चौक की पोजीशन तक जो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, एरो किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ओर होना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन। तो वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। और वी कैन से इन दिस वे, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। इस तरह से बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन बन गई, तो वेक्टर विच represents द पोजीशन, पोजीशन मतलब उसका लोकेशन, वो कौन से पॉइंट पे, विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन